दरिया कश्ती बांधो रे किनारे 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 दरिया कश्ती बांधो रे किनारे 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 दरिया मोराए Good morning, Ronkini. Good morning, Anil. What a pleasure to meet you, and that too in your own home. Yes. Because I have attended your concert and I was sitting right in the front row. Wow. लेकिन audience में आपको देखना और आपके साथ बैठना, what an absolute pleasure. And Pleasure is all mine, sir. And I am your fan. See, while your body of work, I am not a very classical oriented person, but I understand music. Correct. I had heard your songs, film songs, Acha. Rafu, then Chawalaga. But what made me become your fan was the serial Mukhbir. Oh. Mukhbir के जो दो गाने हैं, जी जी जी. mind blowing. Much before Dhurandhar came, you know, I think that it was released sometime in 2022. Mukhbir? Mukhbir. Yes, yes. And 22. similar theme, spy Correct, wala spy. theme. So in such genres, the music takes a backseat. Of course, Dhurandhar is an exception. Correct. And those songs and that too, those also appear in the background, I believe. Yes. But one of them is in the background and the other, the lady is recording it. So. क्या पता फिर से हाँ, वो संभल जाए. हाँ, हाँ. तेरे आने से दिल बहल जाए. What a beautiful song. Even the other one is very good. And that made me rewind and watch it again. Absolutely. Wow. And then I started following you. कौन रोंकिनी है? आपने काम तो बहुत किया है, लेकिन आजकल के ज़माने में क्या था, इतना क्लटर है. बहुत. And it takes time to make your presence felt and by noticed. Because there is so much of talent in India, and of course you are absolute talent, no doubt about it. So I noticed and I became your fan, and I was looking forward to attending one of your live concerts. And the one at NMACC, Khayal-e-Jaz, yes, was the opportunity which I took, and it was mind-blowing, of course. So going back in flashback mode, you started learning music from Chandrakantji Apte, yes, your first guru. You learned music from him, but did you learn Marathi also from him? Little bit. I could understand, yeah, because उनके घर में उनकी बेटियां भी थी और सब वगैरह, तो बातचीत करते रहते थे और आई बाबा ये सब I got used to those terms. Then you know, very small little things I could understand उस वक्त. And then the cuisine, देखिए एक culture को understand करने के लिए जैसे आपने कहा कि किताबें, उनका खाना. So I got accustomed to the puran poli and you know, all those little dishes that you make. तो कुर्थाचं पिठलं वगैरह. So ये सब चीजें हुई उनके साथ. और तुझं नाव काय? Okay. ये सब Awesome. yes. So what I observed that you have worked with many Marathi guys. Yes, I have sung for Marathi films also. I know. Yeah. Congratulations, G Gaurav Award for the film Thank you. Uttar. Thank you. And as I told you, I was traveling, so I could not watch the movie. When I came back recently, I watched it on Z5. And I think working with Z Studios is very lucky for you. Mukhbir also is a Z production. Yes, I won Z Saregama in 2004. So वहाँ से शुरू है मेरा Z के साथ association. There again you worked with a Marathi guy, Rishikesh Ranade, your co-singer. My co-singer, he was the co-winner. He was the male winner. I was the female winner. So Z के साथ I go back 25 years. Almost. Yeah. So you have had so many conversations on different platforms, and commonly people ask you, what is the inspiration? What did you learn from your gurus? But let me ask you, what did you learn from your peers? Because when I attended your concert, you mentioned fondly about the gentleman who played tabla with you, Ashish, then Shantanu Ghatak. Yes. These two come to my mind, but please share your experiences working with peers and colleagues. I would love to hear. And our audience would also love to know. I'll tell you, in fact, just now I was having my master classes. इसमें I teach also very prolifically. तो
उनके साथ भी मैं ये शेयर कर रही थी कि संगीत ना हम माहौल में सीखते हैं, गुरु इज अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दैट माहौल, बट उसके इर्द गिर्द इट्स peers and colleagues करेक्ट, with whom we learn. यस, So I'll start with a couple of things जो बचपन में सीखते वक्त मुझे peers and colleagues से मिला. एक तो एक बहुत हेल्दी competitive space, क्योंकि वहाँ पे जब कोई टास्क दिया जाता है तो सभी लोग जो हैं उस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं या उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाना चाहते हैं. तो जैसे 10 लोग सीख रहे हैं और उनको कुछ क्रिएटिवली इनपुट देना है, तो मैंने कुछ क्रिएटिवली इनपुट दिया, 9 और लोग हैं एंड एवरीबडी विद अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल ब्रेन. भगवान ने सबको कैपेसिटी दी है सोचने की, तो आपको 9 और डायमेंशंस मिल रहे हैं उसी चीज, उसी नजरिए को देखने का, अलग अलग अलग. तो उससे बहुत बड़ी लर्निंग होती है. और जो दूसरी चीज है कि आपने कुछ, जो जुगलबंदी का स्पेस होता है कि आपने कुछ कहा, कॉन्वर्सेशन जिसको हम कहते हैं, तो म्यूजिक इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन. आप अकेले अपने आप से नहीं बात कर रहे होते, आप ऑडियंस, तो आपका जो पहला टेस्ट ऑफ ऑडियंस होता है वो भी आपके पीयर्स होते हैं, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हैं, आप उनमें से उनसे कुछ सीख रहे हैं, आप उनको कुछ बता रहे हैं. तो इट वाज ब्रिलियंट इन दैट लर्निंग स्पेस. फिर बाद में जब प्रोफेशनल जिंदगी में मैं आई तो राइटर्स के साथ मुलाकात हुई, म्यूजिक कंपोजर्स के साथ मुलाकात हुई. सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, सबकी अपनी लाइफ की जर्नी होती है. कोई स्पेसिफिक एनेक्डोट कह सकती हैं आप, जैसे क्या सीखा उससे? क्या सीखा विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अ फिल्म और अ पर्टिकुलर. एब्सोल्युटली. जब मैं भारती करके एक ब्रॉडवे शो के साथ में एंगेज थी, वहाँ पे जब मैं काम कर रही थी तो पहली बार मैंने, देखिए स्टेज पे तो मैंने गाया था, सब कुछ किया था, बट प्लेबैक सिंगिंग जब की बात आई, रिकॉर्डिंग की जब बात आई, तो पहली बार मुझे मौका मिला माइक के पीछे आइसोलेटेड एक रूम के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी कुछ टेक्निक्स बहुत अलग थी. थ्रो कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आवाज को एक ओपन स्पेस में आवाज को कैसे थ्रो करना है वर्सेस एक क्लोज्ड रूम में जहाँ पे आप माइक के अंदर एकदम इतने क्लोज स्पेस में आपकी सारी चीजें वहाँ रिकॉर्ड हो रही है, आप इतनी सी सांस ले रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रही है. तो सांस कैसे लेना है एक रिकॉर्डिंग स्पेस में वो भी अलग है. कि नॉर्मल लाइव सिनेरियो में इतना लंबा सांस भी, बड़ा सांस भी ले रहे हैं वो रजिस्टर नहीं होता, लेकिन उतने सेंसिटिव माइक में अगर हम इतनी सांस ले रहे हैं वो भी रजिस्टर हो रहा है. तो उसको कैसे कट करके गाना है, कौन से वर्ड को कितना खींचना है, का साउंड कितना करना है, फ का साउंड कितना करना है, ज्यादा ब्लो कर दिया तो इस तरीके से रजिस्टर हो जाता है वो चीज भी. तो ये छोटी छोटी बहुत बारीकियां हैं जो रिकॉर्डिंग म्यूजिक के लिए मुझे उस पर मुझे एक याद आया कि जैसे आप स्टूडियो में रिहर्सल कर रही हैं, गाना गा रही है, रिकॉर्डिंग रूम में गाना गा रही है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास सेकंड चांस है जी, आप उसको एडिट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं. अब बट व्हेन यू आर अब व्हेन आई केम इन माय टाइम आल्सो वो सेकंड चांस वाला ऑप्शन भी कम ही था. अच्छा अच्छा. एक साथ ये अभी जैसे हो गया ना कि एक एक शब्द कर सकते हो. हाँ. लेकिन होनी भी नहीं चाहिए. लेकिन जब आप लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, लाइव ऑडियंस, आप कोई टेक, नो सेकंड टेक, देयर इज नो सेकंड चांस फॉर यू. सो व्हाट इज मोर चैलेंजिंग एंड मोर सैटिस्फाइंग आउट ऑफ these two? Definitely the live space. Oh, fantastic. Definitely. More satisfying, more challenging. देखिए दोनों के अपने अपने challenges हैं. All work has its own challenges. But more satisfying, more gratifying. What it is to be spontaneous, like we are having a conversation now. There is no, if there is a second take, then we just have the luxury of it. Correct. But otherwise, if you want a spontaneous, fluid conversation, there are no second takes. I never work on a script because you get lost in the paper actually. There are no second takes in life. Yeah, very true. Right. So वही है, your first, you don't get a second chance for your first impression. तो Yes. वो अगर हम माइंड में लेके चलते हैं तो बहुत अलग ग्रोथ होती है. तो we come from that school. Classical music is about that school. क्योंकि you are on stage spontaneously doing what you have not planned for, other than what you have planned for. Okay. So, fantastic. तो क्या हुआ कि जब हम ये आपका एपिसोड प्लान कर रहे थे शो हाउस के यूट्यूब चैनल के लिए, तो लोग मशवरा देते हैं कि भैया ये पूछो वो पूछो. तो एक सवाल उसमें ऐसा था कि जिस दिन रोंकिणी को रियाज करने का आलस आता है, शी फीलिंग टू लेजी, तो उस दिन वो क्या करती है, ये एक सवाल हो गया. तो फिर मैंने आपके बारे में, नहीं मैंने फिर आप
आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की, आपकी वेबसाइट पे गया, वहां पर है रियाज विद रोंकिनी। जिस दिन आपको आलस आता है, जब आप रियाज नहीं करते दूसरों से करवा लेती, वो भी आपका रियाज ही हो गया। ये आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ। मैं जो गाना सिखाती हूँ, टीचिंग इज एन एक्सेप्शनली ग्रेट वे टू लर्न। तो एक तो वो, और दूसरा जो आप इसके पहले जो सवाल किया आपने कि आपने पियर्स, ये पियर्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि हम साथ में जो लोग रियाज करते हैं ना, देखिए सेल्फ मोटिवेटेड होना हर रोज ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीज है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू, फुल्ली। तो और हम सब ह्यूमन हैं। तो ये जो मेरा ग्रुप है, जिसमें आशीष है, शांतनु है, अमृता है, बहुत अच्छा गाती है वो भी, अदिति पॉल है, सब सिंगर्स हैं हम लोग। हम रोज रियाज करने 3 to 5 के बीच बैठते ही हैं, अगर ना in the same room, under the same roof. Wow, fantastic. So this is my learning from peers, that they are also your motivators, they are also your anchors, they are also those people, क्योंकि पांचों लोग एक ही दिन आलस हो, ये नहीं होता है। तो कोई ना कोई तो बोलेगा, अरे आ जाना, बैठेंगे तब आ जाएगा। जैसे जैसे मैंने ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल करने की कोशिश की आपके बारे में, तो आई फाउंड दैट you have an intellectual side and academic side also to your personality. आपने MBA भी किया है, तो कहाँ से किया है और कौन सी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट में किया? तो पहले तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया। फिर MBA मैंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में किया इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से, पुणे। नहीं, बिजनेस एंड मीडिया, ISBNM, पुणे। Okay. Because coincidentally, I have studied in Pune. अरे वाह! I have done my law and MBA from Pune University. So, what I found very fascinating about your dedication to music is also the fact that, as you rightly said, teaching is learning. So, there are various modules on your website, and each has different lessons in a particular genre or in a particular subject. So how does it work? Is it an online module, or there is a scope for interacting with your students also? Yes, there is. Even in the online module, there is scope for interaction. You can ask me questions and I address those in my written answers. So is it a webinar kind of a thing, or is it recorded? Suppose no, it's recorded. But I also have my other online courses which are not recorded, which are interactive. So I have various modules of teaching, because abhi teaching has become a very extensive 360-degree piece, right? जो आके सीख सकते हैं उनके लिए, तो क्योंकि ये म्यूजिक आप प्रेजेंस में ही सीख सकते हो। अगर आपको 100% उसको सीखना है तो आप प्रेजेंस में सीखो। लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, कभी लैक ऑफ मीन्स टू ट्रैवल हो जाता है, तो ऑनलाइन में इंटरैक्टिव भी करती हूँ, ग्रुप में भी इंटरैक्टिव करती हूँ, आइसोलेशन 1-on-1 सेशंस भी करती हूँ, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेसन्स भी हैं। तो आपके पास इतने ऑप्शंस हैं जो मैंने एटलीस्ट देख के रखा है कि मेरे तरफ से भाई मैं इतना कर सकती हूँ। तो सारे मॉड्यूल्स हैं। तो कैसा रिस्पांस है फ्रॉम द स्टूडेंट्स? बहुत बेहतरीन। देखिए, मैं तो ऑनलाइन स्पेस में पैदा नहीं हुई थी। मैंने अपना सारा लर्निंग जो हुआ है मेरा फॉर्मल म्यूजिक लर्निंग, वो मेरे गुरु के सानिध्य में ही हुआ है। उनके पास बैठ के, उनके पास जाके, हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में रोज, एवरी डे। मैंने जब शुरू किया तब वो एक दिन था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुरुजी ने भी बोला कि देखो, जैसे स्कूल जाती हो ना रोज, हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए नहीं जाती, वैसे ही आपको अगर गाना पूरी तरीके से सीखना है तो रोज आइए। रोज गाना नहीं है, लेकिन सुनना है, पेशेंस बिल्ड करनी है, उसको पचने का मौका देना है। जो आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है आपको, और बाद में उसका न्यूट्रिशन आपके साथ कैरी हो। तो कैसे खाना रोज खाते हो ना, ऐसे तो नहीं बोलते कि 1 हफ्ते का खाना एक दिन बैठ के खा जाए हो जाएगा हमारा, तो वैसे नहीं होगा। तो उस स्कूल से आती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ तक पहुँचना कि ऑनलाइन 1 घंटे का क्लास हो रहा है, कैसे मैं एक डिस्टिल्ड पीस ऑफ लर्निंग किसी के साथ शेयर करूँ ताकि उनको बहुत सारा बेनिफिट हो, वहां तक मैं आई हूँ। तो पहले तो मैं बिलीव ही नहीं करती कि ऑनलाइन ये हो भी सकता है, बट फिर धीरे धीरे जैसे एक आर्टिस्ट को उनकी अडेप्टिव कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए आर्टिस्ट, तभी वो सीख सकते हैं। What impresses me the most is many singers, जैसे शंकर महादेवन जी है, महेश काळे, they are devoting a lot of time to spread the awareness of classical music, and they want the youth, and especially the Gen Z, it's very tough working with them. So, and they are getting very good response.
So again, a question which was shared by the show house team is, what are the common mistakes that new students commonly make, if you can? I wouldn't say they are mistakes, because जब आप कुछ सीखना शुरू करते हो तो आप अवेयर नहीं होते हो, तो आप करते हो. बट द कॉमन challenges I would say that people face when they are online is the challenge of being focused, because this medium is very distracting. Patience कि एक चीज जब आप एक लेसन लेते हो उस पे कितने टाइम तक काम करने के बाद उसमें शाइन आती है, वो एक जर्नी होती है. तो जल्दी में बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, कब आएगा कब होगा. तो ये मिस्टेक्स नहीं है, ये चैलेंजेस हैं, और ये अभी ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज पेशेंस एज अ वर्च्यू कम होता जा रहा है. Correct. या फोकस एज अ वर्च्यू कम होता जा रहा है, या परसिस्टेंस एज अ वर्च्यू कम होता जा रहा है, या प्रेसिशन एज अ वर्च्यू. जैसे आपने बोला कि इतने सारे टेक्स मिलते हैं, तो प्रेसिशन का माइंडसेट नहीं है. पहले जब हम रिकॉर्डिंग में घुसते थे तो माइंडसेट यही था कि गाने को गाने जैसा ही गाना है, तोड़ तोड़ के काट काट के नहीं गाना है. सो माई प्रिपरेशन हैज टू बी ऑफ अ सर्टेन लेवल ताकि मैं उसको निभा सकूं इन वन गो. तो वो प्रेसिशन माइंडसेट अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज मुझे पता है ना कि मैं 567 टेक्स में भी कर लूंगी तो आउटपुट मुझे मिल सकता है. तो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स दैट कि ठीक है ना, हो जाएगा टाइम्स. अच्छा, प्रेसिशन. आपका जो कंसेप्ट है और आपका जो बैंड है ख्याल जाज, उसमें भी 2 महाराष्ट्रियन लड़कियां हैं, मात्रे एंड Malgunkar, both of them, and their parents were sitting in the audience. They were so happy. Yes, I'm telling you. So what I wanted to ask you, that concept, I think it's more appealing to the young people, because as you grow old, you become purist. Yes. So share your experience when you are curating these events. I think you have done it across cities in India. Yes. So how has been the experience? The experience has been fantastic. I had started it with this notion that it should go into the youth. And more young people, Gen Z people should come and see it and watch it. But मेरा खुद का perception भी बदल गया. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सोच रहे हैं कि Gen Z को purist समझ में नहीं आएगा या शायद वो appreciate, पर ऐसा नहीं है. I realigned myself into believing that actually ऐसा नहीं है. Fusion is also a legitimate genre and a very entertaining and a very accommodating genre. और ये अक्रॉस एजेस लोगों को पसंद आता है. लेकिन एज वी ग्रो ओल्डर, यस वी बिकम प्योरिस्ट, बट जेन जी कैन बी एज प्योरिस्ट. अभी मेरे फॉलोइंग जो इंस्टाग्राम पे है, और मैं प्योर ख्याल ही गा रही हूँ अभी बहुत सालों से. मेरी फॉलोइंग की एज ग्रुप इज बिट टीन्स 20s. दैट इज माई फॉलोइंग, एंड दोज आर द पीपल हु DM मी, डायरेक्टली मैसेज मी कि ये पलटा दीदी, वो एक्सरसाइज, ये पलटा वो मेरुखंड, जरा हम डिकोड. सो ऐसा नहीं, ये हमारा परसेप्शन है. ओल्ड जनरेशन का परसेप्शन ये है कि वो शायद प्योर. उनको दीजिए आप शुद्ध देसी घी, उनको बहुत अच्छा खाना लगेगा. कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है. पर्सनली स्पीकिंग मुझे वो कंसेप्ट काफी अच्छा लगा. लेकिन ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे कई मित्र हैं जो कहते हैं यार फ्यूजन इज कंफ्यूजन. बट एनीवे, यू शुड, बिकॉज़ ईच वन ऑफ हैज हिज और हर ओन ओपिनियन. But what commonality did you see that made you curate this concept, khayal and jazz? Yes. What are the commonalities? Jazz नहीं, actually उसमें वो नाम रखा है वैसा, लेकिन उसमें वेस्टर्न एलिमेंट्स लाइक पॉप म्यूजिक भी था. थोड़े जैज आर्टिस्ट के गाने भी हमने लिए थे, जैसे नोरा जोन्स का एक गाना था, एडल का एक गाना था, एमी वाइनहाउस का एक गाना था. तो उनके, क्योंकि वो जैज आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर जैज आर्टिस्ट हैं, उनके एलिमेंट्स थे इसलिए. बट द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट वाज के म्यूजिक एक्चुअली फिजल्स बाउंड्रीज है. तो वही 7 सुर और उसके फ्लैट्स एंड शार्प्स 12 मिला के, तो उसके अंदर खेल कैसे कर जाना है और उससे क्या मूड
इवोक हो सकता है और उससे हम दूसरे के सोल को कैसे टच कर सकते हैं, ये मेन एजेंडा है किसी भी म्यूजिक का, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या पॉप हो या रॉक हो या जैज हो या फ्यूजन हो. So Ronkini, I would like to ask you, are you a morning person or a late night person? I'm a morning and day person. I'm not so much of a late night person. Great. And which is your favorite raga? That cannot be said. There is no favorite raga. It's like asking ke bhai, which is your favorite mood? I enjoy all moods. और सब moods कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं. तो you have to grow up to certain moods. मतलब restless भी एक mood है. वो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है ऐसी बात नहीं, लेकिन restlessness में अगर आप नहीं रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज आएंगी ही नहीं. जैसे पेशेंस, क्राइसिस के बाद ही पेशेंस आता है. तो अगर रेस्टलेसनेस आपने कभी फील नहीं किया है तो उसके आगे क्या जर्नी है वो आप कभी फील ही नहीं करोगे. तो आई कांट से विच इज माय फेवरेट राग, बट आई कैन डेफिनेटली से देयर आर सर्टेन राग्स व्हिच मेक मी फील वेरी एट होम. सो वन ऑफ देम वुड बी यमन, द अदर इज बागेश्वरी, भीम पलासी. ये राग मुझे बहुत एट होम फील कराती है, कंफर्ट देती है. तो ऐसा लगता है इट्स लाइक योर नाइट पजामास. और जिस दिन ज्यादा गाने का मूड नहीं उस दिन भैरवी. बहुत डिफिकल्ट राग. भैरवी इज लाइक सच अ No, but it comes towards the end of the concert, so if you want to wind up early, Bhairavi. So fair enough. When I say the word Malhar, जी, what comes to your mind? What is rush one word? of emotions, Rush of emotion. Okay. like very soft, beautiful, जैसे मिट्टी की भीनी खुशबू. It's called Relating to nature now. हाँ, petrichor, petrichor. How is it pronounced? I don't know. Petrichor. Okay. मिट्टी की भीनी खुशबू कहते हैं. And then the whole game of बादल and बिजली and all of that. Correct. So it's a full rush of emotions, full spectrum. Malhar. And when I say Malhar and the sea, what comes to your mind? Oh, then the added dimension of the sea comes in, and I'm a fully sea person because वो उसमें भी होता है ना, mountain person हो कि sea person हो, मैं sea person हूँ. तो वो पूरा एक dimension add हो जाता है, यानी ठहराव, गहराई. So that's my vision of Malhar and the sea. And as you know, that Malhar and the sea is the brainchild of Umar Haider, जी. the owner of Show House. So इस शख्स से आप कब मिली थी? करीब मुझे 8-9 साल पहले हम मिले थे in person. और उसके बाद we have like thanks to social media we have stayed in some sort of a connect. अच्छा. तो ऐसा है. So ये तीसरी बार हो रहा है Malhar and the Sea. जी. और बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है. और उमर भाई की एक खासियत है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. तो अगर ये एडिशन आप देखेंगे, 3rd एडिशन, तो इसमें ध्रुपद भी है जी, ख्याल भी है और ठुमरी भी है. सो ये तीनों, गजल भी है, गजल गीत और गजल भी है. तो वो लाइट क्लासिकल में आता है, इसलिए मैंने स्टोरी टेलिंग भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग जी. तो मैं आपसे क्या पूछना चाहता था कि ये ध्रुपद जी, स्टाइल ऑफ सिंगिंग जी, ख्याल और ठुमरी, व्हाट आर द माइन्यूट डिफरेंसेस इन ईच ऑफ द जॉनर्स? सो मेजर डिफरेंस बोलती हूँ, माइन्यूटली तो कई सारी हैं, बहुत डिटेलिंग में है, बट मेजरली ध्रुपद जो है वो सबसे पहले, इन तीनों में सबसे पहले ध्रुपद आया. इट वाज मेजरली टू डू विद 14th century if I read it correctly. जी. तो मेजरली टू डू विद साउंड्स एंड साउंड पे सबसे ज्यादा ध्यान. ठीक है. उससे थोड़ा और जब डिटेलिंग बढ़ा तो वो साउंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनटू लेट्स से पेरेंट राग्स और थाट्स. ठीक है. साउंड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उसको एक स्ट्रक्चरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो ख्याल जो है स्ट्रक्चरली डिस्ट्रीब्यूटेड थाट में, फिर से उसमें से राग, और फिर उसका भी सब कैटेगरी. तो मैं कहूंगी कि ध्रुपद इज लाइक द ओशन, एंड देन ख्याल आर द बिग सीज, एंड देन द ठुमरी कुड बी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. इस तरीके से हम उसको एक लेंस से, इस लेंस से देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज, और फिर उसकी
तो ठुमरी में क्या है, ठुमरी में आपको अलाउड है कि आप रागों के भी अंदर हाँ, मैन्यूवर you कर can mix सकते हो, राग। यू कैन मिक्स राग। जब हम ख्याल की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर राग में वेरिएशंस एंड इम्प्रोवाइजेशंस, एंड ध्रुपद उसका भी पेरेंट, उसका भी रूट, जस्ट द साउंड, जस्ट द मूड, जस्ट द इमोशन। तो ऐसे पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो गया आपका। तो दैट्स हाउ आई वुड से मेजर, मोटा मोटा। सो ये जब मैंने कंसेप्ट उमर भाई से सुनी तो उसमें उन्होंने एक अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ ख्याल एंड फ्रीडम ऑफ ठुमरी। ठुमरी, करेक्ट। एंड बेसिकली मैंने बोली, so basically these two complement each other in a way that they provide a scope for innovation, improvisation. yes, creativity, So perspective. while khayal has a lot to do with devotional romance, but Thumri is more about emotion and romance particularly. हाँ, आपको मूड्स, रस जो है वो सभी में मिलेगा, ख्याल के अंदर भी मिलेगा, ठुमरी के अंदर भी मिलेगी। न्यूएंसेस किस तरीके से, जैसे ख्याल में गमक, बहलावा, ये ऑर्नामेंट्स, ठुमरी में मुर्कियाँ, छोटे खटके मुर्कियाँ, ये ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंटली कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ऐसा। तो ऑब्वियसली विथ द मूविंग जनरेशन होता क्या है कि स्कोप फॉर क्रिएटिविटी ग्रोस, क्योंकि रेफरेंस है ना। अभी ठुमरी के पास ख्याल का रेफरेंस है, जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस है। ख्याल के पास ध्रुपद का रेफरेंस था, तो उसमें से वो निकला, तो फिर और कुछ बाइफर्केशन। बेसिकली इट्स एन इवोल्यूशन। इट्स एन एवोल्यूशन। इट्स एन एवोल्यूशन। फैंटास्टिक। तो क्या होता है कि मैं एक्चुअली लाइट किसी संगीत को मैं ये वर्ड ही यूज नहीं कर पाती कि लाइट म्यूजिक है, क्योंकि सब कुछ डेप्थ में जाने के बाद ना उतना ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है। तो ठुमरी के अंदर भी बहुत स्कोप है। आप सोचिए ना कि किसी चीज को मैंने इतनी, इट्स लाइक स्टडिंग द ह्यूमन बॉडी। ये एक स्केलेटन है, फिर फ्लैश एंड ब्लड डाला, फिर उसमें पूरा न्यूरो एक्टिविटी डाल दिया। तो कितना डिटेलिंग में, जितना आप डेप्थ में जाएंगे वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही है, कम तो लाइट नहीं हो जाती, वो और कॉम्प्लेक्स। मुझे तो लगता है ठुमरी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। टू समराइज, अगर मैं कहूँ कि ख्याल और ध्रुपद स्वर प्रधान गायकी है और ठुमरी शब्द प्रधान। हाँ, वो एक नया अलग डायमेंशन है, बट मैं उसको इस तरीके से कंपार्टमेंट, मतलब मेरे ख्याल के अंदर भी जो गद्य है, जो टेक्स्ट है, मुझे लगता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन बेसिकली इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली फ्रॉम लिटिल नॉलेज व्हाटएवर आई हैव, it's based on the bandish and then you build it on. हाँ, तो बंदिश also has words, no? But बंदिश में भी तो शब्द है ही है। Very limited words. नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं। So अच्छा, आप मेरी गुरु बन गई। ऐसा नहीं है। देखिए, सभी चीजों में सभी चीजों का की मात्रा एंड प्रोपोर्शन है। ठुमरी के अंदर भी मैं बोलूँगी टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सुर, ताल, क्रिएटिविटी, स्कोप, पर्सपेक्टिव, मिक्सिंग ऑफ राग, फ्लोइंग फ्रॉम वन टू द अदर राग, उसमें भी बहुत मेलोडिक डायमेंशन है। ऐसा कोई कम ज़्यादा की कुछ बात नहीं है, या उसमें पोएट्री बहुत प्रधान है तो उसमें आप थोड़ा सा ये सब कम कर, ऐसा कुछ नहीं। जिसने जितना स्टडी किया है, जिसने अपने आप को जितना तैयार किया है, क्योंकि हम सुनते हैं, एंड आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग कि भाई अब ख्याल में एक बंदिश है, उसके वर्ड्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी हैव दी स्टोरीज ना कि शब्द भूल गए तो एड्रेस गा लिया। ये कहानियां ही हैं, ऐसा कुछ विलट उलझे सुलझा जा बालम, लट उलझी, कॉन्टेक्स्ट है, लट उलझी सुलझा जा, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। श्रृंगार रस में भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है कि हाथ न मेहंदी लगी है मोरी, अपने हाथ लगा जा बालमा, माथे की बिंदिया बिखर गई अपने हाथ। तो आप जान, क्या है कॉन्टेक्स्ट, आप बताइए ना। ये शादी के दिन का है, वो सज रही है, लट उलझ गई है, सुलझा जाओ अपने पिया को, वो बोल रही। श्रृंगार रस में भी एक बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसमें विरह भी है, विरह का एक अलग नाम है, तो शब्द अलग है उसके। अगर इतना ही वर्ड अनस्पेसिफिक होता तो फिर हम वहाँ कुछ और भी डाल सकते थे, फल फूल की बात, ऐसा तो नहीं। मल्हार में जब हम कर रहे हैं, मेघ की बात कर रहे हैं, बादल की बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं, उसमें मोर पपीहा की बात कर रहे हैं, या मैं अपने बलम को मिस कर रही हूँ, बाकी सखियां मेरी उन रंग, तो कॉन्टेक्स्ट तो आपकी बंदिश में भी है और राग के साथ बिल्कुल इन टैंडम है। तो वैसा नहीं है, सब में सब कुछ है। आप देखो आप कैसे गा रहे हो।
what I was trying to get at Get. is human beings always seek novelty, but at the same time identify familiarity. Right. If you're giving them something which is totally offbeat, they may not like it. And you are very good at improvisations and innovations. So what do you have in mind for Malhar and the Sea in Goa? In terms of storytelling or in Storytelling बोलो, performance बोलो, singing बोलो. आप ही से उधार What do लूंगी. we expect? What do you आप ही से उधार लूंगी. सिलेबस है, Question क्वेश्चन paper पेपर नहीं है. Great. तो क्या है दिमाग में कि जो मैं सोचती हूँ एज अ पर्सन जिन्होंने ना केवल म्यूजिक किया है बल्कि 40 इयर्स ऑफ लाइफ भी जी है, वो पर्सनल ट्रूथ्स एंड एक्सपीरियंसेस मेरे गाने के जरिए बाहर आए. ये मेरा एजेंडा है फॉर एनी कॉन्सर्ट, नॉट ओनली फॉर Malhar and the Sea, but Malhar and the Sea is a space where I believe because of the माहौल, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो है वो माहौल पे भी डिपेंड करता है. सिर्फ मैं क्या कहना चाहती हूँ उस पर निर्भर नहीं है. आप क्या सुनना चाहते हैं, हमारा कैसा संगम बनता है, वो एम्बियंस हमको किस तरीके से एलिवेट करता है टू कम टू अ स्पेस जहाँ पे ये स्टोरी टेलिंग एकदम ब्यूटिफुली फ्लूइड हो. तो मुझे लगता है कि मल्हार एंड द सी मुझे वो डोमेन देगा और वहाँ पे वो स्टोरी टेलिंग उस तरीके से निकल कर आएगी. ये मैं उम्मीद करती हूँ. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपका इतना व्यस्त दिन क्रम है फिर भी आपने हमारे लिए नहीं समय निकाला. हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं. मुखबिर की दोनों में से कोई भी एक गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए. जरूर. क्या पता फिर से ये संभल जाए, तेरे आने से दिल बहल जाए, तेरे आने से दिल बहल जाए, ओ तेरे आने से दिल बहल जाए, क्या पता फिर से ये संभल जाए. You just made my day. Thank you so much. Thank you.